Hello and welcome to the second edition of the Prince new political show, Political Adda. As the campaign for the Gujarat and Himachal Assembly election begins, we have been witnessing an aggressive campaign by the Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party. We have been witnessing multiple visits have been made by Prime Minister Narendra Modi as well as the Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal. I am Neelam Pandey and I'm joined by my colleague Shankar Nandimesh who covers the BJP for us. Welcome Shankar. We also have our domain expert on the Aam Aadmi Party, Abhishek De. Welcome. Well, in today's Political Adda, we will try to discuss the issue, what has changed between the fight between the Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party since 2020 to 2022 in Gujarat. Let's start this special episode. Abhishek, what's your take? I would like to summarize the differences and the similarities on a point-by-point basis. First of all, I think we should look at it in a role reversal way. For instance, in February 2020, the Aam Aadmi Party had already been in Delhi in power for 5 years with a huge majority. It was the party in power. The BJP in Delhi was essentially trying to attack the AAP as its main strategy, fundamentally trying to find loopholes in its governance model on multiple aspects. Now come 2022, as in the run-up to the Gujarat polls. So now the role has reversed. Now the BJP has been the ruling party in Gujarat for the 6th consecutive term. Now they have been there for years. It's their domain. And the Aam Aadmi Party has been attacking the BJP in a similar way on multiple governance fronts. Now we have seen the Aam Aadmi Party come to power in Delhi, in Punjab. Now the thing is that in Delhi and Punjab, there's a difference. Now in Delhi, the BJP has not been in power since 1998. The Congress has been in power for 15 years. In Punjab, that doesn't happen to be, when it comes to the assembly elections, it doesn't happen to be one of BJP's domains. The regional parties are very strong, Congress is very strong. So that's also a difference that way. Now what happens in Gujarat, we are yet to see. The second point would be in February 2020, BJP, a lot of things were going on. The anti-CAA protests were at its peak in Delhi. There was a big protest movement in Shaheen Bagh which went on for months. BJP to a large extent had also based its primary campaign on some sort of polarization, and to a large extent that worked, which reflected on the vote shares. AAP managed to evade that debate, much like what it's doing right now at this point when it comes to the remission of sentences of the convicts in the Bilkis Bano case. They haven't commented on it. Very deliberately, very strategically, they have maintained a nuanced silence on it. Now in Gujarat, the AAP is also building its campaign fundamentally on something they often refer to as the Delhi model, which essentially means a governance model that primarily believes in improving the quality of education, quality of healthcare, welfare measures, free electricity, etc., etc. Now the BJP, on the other hand, is trying to puncture these claims primarily by creating the perception and attacking the AAP and attacking its anti-corruption crusader credentials. The third point would be there is also a similarity in the February 2020 and come Gujarat 2022 scenario is like the Congress seems to be missing from the larger political discourse. Now we have seen that in the past there is a pattern of AAP crushing the Congress in many states. It has happened in Delhi. Congress had ruled for 15 years. The AAP primarily crushed the Congress. It has happened in Punjab. We have seen Congress vote share come down, AAP taking away the power of the state from the Congress. But we also have seen that the AAP is yet to test the water with the BJP. So the larger question now is, can AAP do in Gujarat 2022 what the BJP could not do in Delhi in February 2020?
Well, that's quite an interesting observation. I would just like to add, you pointed out that on the Bilkis Bano case, they have been quiet, the Aam Aadmi Party. In Delhi also, they did something similar. The Shaheen Bagh episode, we saw that the AAP chief kept quiet. So, it would not be wrong to say that, Aam Aadmi Party is trying to project itself as ideologically neutral, but as a party which is there to, like a service provider. It will provide you good health care, it will provide you good education. That is their pitch. I would also like to add that, for the BJP, the concern, so far it was quite confident that, there is no competition in Congress, whether it's Gujarat or any other state. But with the entry of the Aam Aadmi Party, the fact that they were also reduced to, less than 100 in 2017, that is also there in the back of their mind. And at the same time, factors like the anti-incumbency for the BJP, the Revdi culture debate that the Aam Aadmi Party has started off. So these concerns are also there for the BJP, and the BJP has tried to address it by, for instance, changing the entire cabinet, changing the chief minister itself, getting in place of Mr. Rupani, Mr. Bhupendra Patel. So at the same time, it is also trying to address a caste-related issue. It is also trying to address, if there are any concern in the BJP as a whole, if there is any infighting. It has ensured that Rupani has been given a national role. So the BJP is also conscious of AAP as a factor. Well, the party, when we speak to them, they are quite confident that they will win the election. But how much will there be an erosion in terms of their vote share? Though largely they feel it is the Congress vote share which will be affected. But at the same time, they want to ensure that they do much better than what they have done in the past. So शंकर, आपकी तरफ आती हूँ. आपको क्या लगता है, कांग्रेस को सब लोग कह रहे हैं कोई फैक्टर ही नहीं है, आम आदमी पार्टी है जो सारा उनका वोट शेयर खाने वाली है. आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस आज की तारीख में नहीं दिखता कि फैक्टर नहीं है गुजरात के इलेक्शन में, लेकिन जिस पार्टी के पास 38% 39% का वोट शेयर रहा है पिछले, अगर असेंबली इलेक्शन को देखें तो उसको बिल्कुल आप राइट ऑफ नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल पार्टी निगेट नहीं कर सकते. खास करके उन ट्राइबल इलाके में जहाँ पे कांग्रेस का अच्छा स्ट्रांग होल्ड है. ट्राइबल इलाके में लास्ट टाइम भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. लेकिन देखिए, गुजरात की कहानी मुझे जो दिखती है कुल मिलाकर 2022 का जो असेंबली इलेक्शन है, ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए 2014 का मोदी मोमेंट है. जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 में पूरे देश भर के इलेक्शन को गैल्वनाइज किया था, एक नए एस्पिरेशनल क्लास को एक्टिव किया था उन्होंने. केजरीवाल के लिए गुजरात का चुनाव है 2014 का चुनाव, जिसमें कि केजरीवाल बहुत ही चालाकी से कास्ट में नहीं फंस रहे हैं, वो इसको क्लास वॉर बना रहे हैं. कास्ट वर्सेस क्लास वॉर का जो लड़ाई है, मोदी ने 2014 में ये किया था. मोदी को ये पता था कि अगर मैं कास्ट में उलझूंगा तो इतना बड़ा सपोर्ट बेस, खास करके जो मंडल पार्टियां जिन राज्यों में एक्टिव हैं, उनका सपोर्ट नहीं ले पाऊंगा. इसलिए नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे किए जो कि हर एक एस्पिरेशनल क्लास को लुभाया. अरविंद केजरीवाल वही गुजरात में कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जिसमें कि 9 गारंटी 10 गारंटी बड़े वादे. वो बीजेपी के वादों को भी ले रहे हैं, कांग्रेस के वादों को भी चुरा ले रहे हैं. कांग्रेस जिन स्टेट में ये पेंशन का जो स्कीम है, जिसकी कांग्रेस बार बार कहती रही, उसको भी अरविंद केजरीवाल ने जाकर गुजरात में फेंक दिया. बीजेपी के वादों को भी ले रहे हैं. तो अरविंद केजरीवाल के लिए डू एंड डाई की स्थिति है. खास करके लिए उनको ये लगता है कि सिर्फ ये इलेक्शन गुजरात का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन 2024 का इलेक्शन है. अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी की फाइट 2024 में होने वाली है. और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अगर शेर के मुंह में जाकर हाथ डाल दो तो इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि आपको सारा मीडिया अटेंशन मिलेगा. और आप अगर 0% पे हो तो 0% से शुरुआत करके आप 15% पे भी पहुंच सकते हो. तो आपकी पहली तो फाइट है गुजरात में ये कि वो कांग्रेस को रिप्लेस करे, वो अपोजिशन पार्टी वहां पे बन जाए. जो कांग्रेस पिछले असेंबली इलेक्शन में 77 सीटें जीती थी, जो घट कर 60 64 पे आ गई है. तो आपकी पहली फाइट है कि वो
अपोजिशन पार्टी वहाँ पे बन जाए। उसे बिल्कुल पता है कि वो सत्ता में नहीं आ रही है, लेकिन अपोजिशन पार्टी वो नंबर 2 की पार्टी वहाँ पे बनना चाहती है, और नंबर 2 की पार्टी जैसे ही आप वहाँ पे बनेगी वो उसको भुनाएगी 2024 में। वो कहेगी कि देखो हमने गुजरात भी ध्वस्त कर दिया, बीजेपी को यहाँ से यहाँ पर लेकर हम आ गए, पंजाब में हमने सफलता की, दिल्ली में हम पावर में हैं, गोवा में भी, गोवा में 6% का वोट शेयर उनके पास है। तो एक नेशनल पार्टी के रूप में, और इसीलिए देखिए कि अरविंद केजरीवाल बड़ी चालाकी से ये सारी जो अपोजिशन पार्टियों का गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उससे उन्होंने डिस्टेंस बनाया हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे ही वो इस ट्रैप में फंसेंगे, नीतीश कुमार, कांग्रेस, ममता बनर्जी, वैसे ही उनकी जो यूनिक आइडेंटिटी है वो डाइल्यूट हो जाएगी। इसलिए वो नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई 2024 में एक तरह से कहीं देखना चाह रहे हैं, और ये केजरीवाल की स्ट्रैटेजी है। कांग्रेस इस समय निश्चित रूप से कहीं गेम में नहीं दिख रही है। राहुल गांधी अगर अपनी दूसरी यात्रा वहां से शुरुआत करेंगे गुजरात से, तो थोड़ा देखना होगा कि कांग्रेस ट्रैक्शन में आती है, लेकिन फिलहाल जो वो वोट शेयर खाएंगे वो कांग्रेस का वोट शेयर खाएंगे। लेकिन बीजेपी इसलिए कुल बुलाई हुई है क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि आप देखें कि वो म्युनिसिपल इलेक्शन में भी किसी ऐसे पार्टनर को 2 सीट देने के लिए तैयार नहीं है, और खास करके जो सौराष्ट्र का इलाका है, सौराष्ट्र का इलाका जहां पिछली बार बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, उस इलाके में, सूरत के इलाके में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पोल में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को सफलता मिला। उस इलाके से सीआर पाटिल आते हैं जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। उस इलाके में बीजेपी को अपना जो होल्ड है वो बचाना ही बचाना है, और आप उस इलाके में डेंट करना चाहती है, तो इसलिए ज्यादा कुलबुलाहट बीजेपी और आप में वहां मच रही है। नहीं, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि ये इलेक्शन सिर्फ एक गुजरात इलेक्शन नहीं है, आम आदमी पार्टी इसको अपने एक नेशनल प्रोजेक्शन के लिए भी यूज करेगी, और एक तरह से ये पीएम मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का होम टर्फ है, तो वो वहाँ डायरेक्ट लेके गए हैं अपनी फाइट। अभिषेक, वी विल बी आस्किंग a few questions from our viewers. Aman Shukla wants to know, how do you see this power tussle between Arvind Kejriwal and BJP? As you know, every morning we learn about one leader or the other of the Aam Aadmi Party. Either there is some case against him or someone has been arrested. We have seen what happened to Mr. Satyendra Jain, you know, the issue that is going on with Manish Sisodia, how the Delhi BJP is also targeting the Aam Aadmi Party. So how do you see that? Thanks for that question, Aman. There's a very clear strategy here. So the Aam Aadmi Party as a political startup had started from the India Against Corruption movement in 2011, which was led by Anna Hazare, and as we all know, Arvind Kejriwal was part of it. So as and when the Aam Aadmi Party grew with time, they adopted a pro-development, pro-welfare governance model, which they often brand as the Delhi model, because they started with Delhi as their primary state, and then they went on to win Punjab, and eventually now they are going to contest polls in many other crucial states, including Gujarat. So as and when the party grew with time, it never gave up on its image or its brand as an anti-corruption crusader. So even if you see, like recently, earlier this year in Punjab, they sacked one of their ministers. The charge was simple, it was a corruption case. So they always kept that thing burning, that they are a set of honest people, and that's been part of the larger Arvind Kejriwal brand, that's been part of the larger Aam Aadmi Party brand. So even when they're campaigning in places like Gujarat now, they've been clearly reinstating this very thing, that we are a set of honest people, and that's why you should trust on us. So what the BJP here is trying to do, like with these cases, it's very evident that politically they are attacking this anti-corruption brand of the Aam Aadmi Party. So it's a fundamental attack that way. And the Aam Aadmi Party has been taking a number of strategies. For instance, it has been talking about how the BJP has been trying to crush opposition parties through its Operation Lotus in several states. They have tried that with the AAP, so and so and so, but the pattern is very evident. Another question for you, Shankar. What would be the impact on Congress? वो पूछना चाहते हैं आदित्य कि कांग्रेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसके फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा अगर आप उनका जो वोट शेयर है उसमें से काफ़ी कुछ अपने तरफ ले जाती है। आपने कुछ इस पे अभी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में बता पाएँ। देखिए, गुजरात की पॉलिटिक्स को अगर आप
जब गुजरात 1960 में अलग हुआ था बॉम्बे से, तब से देखें तो गुजरात की पॉलिटिक्स लार्जली दो पार्टियों में बटी रही है। शुरुआत के 1960 से 85 तक का जो रिजीम था वो कांग्रेस का रिजीम था, जिसमें कांग्रेस ने राज किया, तो आप लगा लेंगे 25 साल कांग्रेस के पास रहा। उसके बाद से बीजेपी का एसेशन शुरू होता है, और शुरुआत के आप उस दौर में देखें कि जिस जमाने में चिमन भाई पटेल हुआ करते थे, उसके बाद माधव सिंह सोलंकी आए जिन्होंने खाम का फार्मूला दिया, तो कांग्रेस का डोमिनेंस उन 25 सालों में रहा। उसके बाद गुजरात में एक हिस्ट्री में देखें तो वहाँ पे कोई छोटी पार्टियां कोई बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई हैं। जैसे कि बीजेपी के कई सारे लीडर ये कहते हैं कि ये 2 पार्टी सिस्टम गुजरात में रहा है, बाइपोलर पॉलिटिक्स रही है, छोटी पार्टियों का कोई बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं रहा है गुजरात में। उसके बाद जब कांग्रेस माधव सिंह सोलंकी का रजीम खत्म हुआ और फिर चिमन भाई पटेल वापस आए, जनता दल के सहारे उन्होंने सत्ता बनाई बीजेपी के सपोर्ट से, उसके बाद बीजेपी का एसेशन शुरू हुआ और बीजेपी ने जो सफलता पाई उसके बाद से 95 के इलेक्शन में, 91 के इलेक्शन में, उसके बाद से बीजेपी 27 सालों से वहाँ पे राज कर रही है। तो कांग्रेस जिस तरह से उन्होंने अपने वोट बैंक को खोया, जो खाम का पूरा फार्मूला था कि आप क्षत्रिय, हरिजन, दलित और मुस्लिम के साथ में, आदिवासी के साथ में, उस फार्मूले को बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया है। अगर माइनस मुस्लिम कर दें खाम में से, तो बाकी जो 3 लेटर हैं वो बीजेडोमिनेटली के पास में है। इवन अगर आज आप देखेंगे तो मुस्लिम्स का भी सपोर्ट वो किसी तरह करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि गुजरात प्रीडोमिनेटली जो है मुख्यतः एक तरह से हिंदू सोसाइटी है, अवनाइज सोसाइटी है, वहाँ पे हिंदुत्व का जो पोलराइजेशन है वो नरेंद्र मोदी के आने से बहुत पहले शुरू हो गया था। मतलब जो लोग ये कहते हैं ना कि वो मोदित्व गुजरात में है, तो मोदित्व के आने से पहले गुजरात जो था हिंदुत्व के फ्लेवर में था। और 91 के इलेक्शन में देखें कि जहाँ पे लोकसभा की 20 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो मोदी के आने से पहले राम मंदिर का इम्पैक्ट और जिस तरह से अर्बन क्लास है, मिडिल क्लास है वहाँ पे, जिस तरह से आप देखें कि 70 के दशक में 73-74 में जो आंदोलन हुआ स्टूडेंट का, ये सारे ऐसे फैक्टर थे कि उन्होंने गुजरात की चेतना को अवेकन किया। और वो सारी जो हिंदू सोसाइटी, जो हिंदुत्व का जो तड़का है गुजरात में बहुत पहले से लगा, और इसलिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी गुजरात कही जाती है। कांग्रेस वहाँ पे उसके बाद से लगातार डिक्लाइन पे है, और इसके बावजूद कांग्रेस के पास में भी वोट शेयर है, 38%, 39% का वोट शेयर है। लेकिन आप देखें कि पिछले असेंबली इलेक्शन से तुलना करें, कांग्रेस का एक तरह से 26-27 सालों में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था लास्ट असेंबली इलेक्शन में, जब उन्होंने 77 सीटें जीती थी। हार्दिक पटेल, चूंकि पाटीदार एजिटेशन का कांग्रेस ने फायदा उठाया, उनके पास ओबीसी के लिए अल्पेश ठाकुर को उन्होंने किया, दलित के लिए जिग्नेश मेवानी थे, तो 3 जो यंग लड़के थे उनके सहारे कांग्रेस ने बहुत अच्छी फाइट दी 2017 में। लेकिन उसके बाद से देखिए क्या हुआ, जिग्नेश मेवानी को छोड़कर दोनों, हार्दिक पटेल और अल्पेश, दोनों बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने बड़ी स्मार्टली उनके सारे एमएलए को तोड़ना शुरू किया, और आज की तारीख में कांग्रेस अपने नंबर से डाउन हो गई। तो कांग्रेस की जो अपनी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, और एक तरह से जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कांग्रेस बेसिकली बीजेपी की बी टीम है वहाँ पे, और वो एक तरह से दिखता भी है कि कांग्रेस उस तरह से एग्रेसिव नहीं है अपने इश्यूज को लेकर, अपने टर्फ को बचाने के लिए। और जिस तरह से कांग्रेस वहाँ पे यूनाइट होकर उन्हें अपना, कम से कम जो ट्राइबल इलाका है वहाँ पे तो उनका स्ट्रांग होल्ड रहा है, दलित में उनकी अच्छी पेनेट्रेशन रही है, माइनॉरिटी कम्युनिटी में रही है। तो इनको अगर जब तक वो नहीं बचाएगी, तो कांग्रेस का जो वोट शेयर है इस इलेक्शन में, हालांकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि देखिए ये आपका जो बबल है सिर्फ मीडिया में दिखता है और 2-4 सीटों से ज़्यादा उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे बहुत अच्छे ढंग से अपने कैंडिडेट को उतारे, तो अपोजिशन की स्पेस जो कांग्रेस के पास है उसको निश्चित रूप से आप ले सकती है। सवाल यह है कि वो उन्हें अपने कास्ट कॉम्बिनेशन को अच्छे ढंग से बिठाना है और अच्छे कैंडिडेट देना है। और देखिए, आपने बड़ी स्मार्टली जो काम बीजेपी एक ज़माने में करती थी, आप वो काम कर रही है। आपने किस किस सेगमेंट को वहाँ पे टारगेट किया है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, टीचर्स जो हैं उनको टारगेट किया है, उसके बाद जो ऑटो वाले हैं, इसके अलावा आप देखें कि पुलिस फोर्स में जो लोग हैं उनसे जाकर
जो टाउन हॉल था उसके बाद अरविंद केजरीवाल मिले और स्टेट गवर्नमेंट को 500 करोड़ रुपए रिलीज करने पड़े जो उस वेतनमान के लिए डिमांड कर रहे थे कि उन्हें पे स्केल अपग्रेड किया जाए, और सरकार नहीं कर रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के प्रेशर में उन्हें 500-550 करोड़ अपग्रेड करना पड़ा। तो ये सारे जो कोर कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें 7 लाख लोग ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी गुजरात में हैं, उनको अरविंद केजरीवाल टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस का वोट शेयर खाएंगे, लेकिन बीजेपी की चिंता ये है कि कांग्रेस का वोट शेयर तो वो खाएं, लेकिन इसमें कहीं बीजेपी का नुकसान तो नहीं होगा कि ऐसी स्थिति न बन जाए कि अरविंद केजरीवाल 20 सीट ले जाएं और कांग्रेस भी 50, 70, 60 सीटों पे सिमट जाए। तो बीजेपी का जो 99 और 111 का जो आंकड़ा है आज की तारीख में, वो कहीं ना फिर से उसी आंकड़े पे तो नहीं पहुंच जाएंगे। तो बीजेपी की असली चिंता वो है। और दूसरी उनकी चिंता है कि नेशनल जो एम्बिशन है अरविंद केजरीवाल का, वो प्राइम मिनिस्टर को क्या 2024 में डेंट करेगा कुछ राज्यों में? नहीं, आपने इंटरेस्टिंग बात बोली। बीजेपी इसलिए भी कंसर्न है, अगर आप देखेंगे 2002 में उनकी 127 सीट थी, 117 हो गई वो 2007 में, 116 2012 में और 99 सीट्स में वो 2017 में आई। तो उनका भी एक कंसर्न ये है कि कहीं हमारा वो उनका कांग्रेस का वोट शेयर तो खाएंगे, हमारे वोट शेयर में भी कहीं डेंट ना लगे। और ये 2024 के इलेक्शन से पहले होगा जिसमें पीएम मोदी एक थर्ड टर्म के लिए जाना चाहेंगे। तो वो जाना चाहेंगे एक स्ट्रेंथ के साथ कि देखिए ये तो हमारा अपना होम टर्फ है, यहाँ पर अगर हमें प्रॉब्लम हुई है तो इसको ऑपोजिशन काफ़ी यूज़ कर सकता है। अभिषेक, अनदर क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम आवर व्यूअर. Do you think continuously attacking Prime Minister Narendra Modi personally, may turn out to be a negative campaign for the Aam Aadmi Party, the way they have been going all out and, criticizing the policies or even making personal attacks? And I would just like to add, if you remember, during the national elections, Congress had launched a campaign called Chaukidar Chor Hai. And, Rahul Gandhi, in every rallies, he used to talk about it. And that somehow, backfired. Because PM Modi has an image of, someone who is synonymous with development, anti-corruption. So that didn't work for the Congress. It was some sort of a flop campaign. How do you see that AAP is navigating that? So can't really say for sure whether it will backfire for Mr. Arvind Kejriwal or not. But if we look into the background of it, so Mr. Narendra Modi happens to be a pan-India brand, and the brand is much, much, much stronger in a place like Gujarat, where he has been CM for a very long time, and as essentially is usually credited with creating something called the Gujarat model, much before the Delhi model. Secondly, as you said, as you gave an example of the Chaukidar Chor Hai campaign, even before that, if you see, Mr. Modi is very skilled in his ways of tackling such kind of negative campaigns and personal attacks. He was called Maut Ka Saudagar by Sonia Gandhi, and he turned that totally in his favor. That whole comment. He was called a chai wala by Manishankar Iyer, and back then he entirely maneuvered, he entirely drafted a campaign and he's changed the narrative, and it totally worked in his favor. So you never really know. So all that can be said is like Mr. Kejriwal, this is one of the areas where Mr. Kejriwal has to tread really, really carefully. He has to be really careful. शंकर, आपसे पूछना चाहूँगी, एक और हमारे व्यूअर ये जानना चाहते हैं कि अगर गुजरात इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को अच्छा वोट शेयर मिलता है, कुछ सीटें भी वो जीतते हैं, तो क्या उनको एक एज मिलेगी अदर लोकल पार्टीज़ में? और उनकी बार्गेनिंग जो पावर है, अगर कोई थर्ड फ्रंट खड़ा होता है तो क्या उसमें उनको फ्यूचर में एक तरह से हाईलाइट होंगे उसमें? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल इस ट्रैप में फंसेंगे, थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट वाला जो ट्रैप है। अभी तक बच रहे हैं, अभी तक वो बच रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने किन किन चीज़ों से अपने को बचाया है। पहला जो ट्रैप था कि ये हिंदुत्व का जो बीजेपी का मेन नैरेटिव है, जिसमें कोई भी पार्टी मैच नहीं कर पाती उस बीजेपी के नैरेटिव से, अरविंद केजरीवाल ने उससे फाइट नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल उसकी शरण में चले गए। वो हर मंदिर में जाते हैं, गुजरात में भी देखिए हर मंदिर में वो मत्था टेक रहे हैं। उनको ये लगा कि भाई नेशनल जो कॉन्सेंसस है वो चेंज हो रहा है, और इसलिए इसका फायदा उठाना चाहिए, न कि कांग्रेस की तरह बेवकूफ़ी करके उसे काउंटर करना है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व के प्लान पे बिल्कुल बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं किया। अब वो सिर्फ एक जो मुकाबला कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर की ब्रांड इमेज, जिसको लेकर गुजराती जो कम्युनिटी है वो बड़ा इमोशनल है।
वहाँ पे वो ट्रैप है, उसमें वो फंसते हैं, बच के निकल जाते हैं, उसका उन्हें फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्हें ये शायद लगता हुआ कि इसके अलावा उनका काम भी नहीं चल सकता, ठीक है, वो अपने मॉडल जो दिल्ली मॉडल है उसको बेच भी नहीं सकते। तो ये एक ट्रैप है जिसका डिविडेंड हमें देखना पड़ेगा इलेक्शन के बाद। लेकिन जो मोटी बात है कि अरविंद केजरीवाल अगर कुछ भी सक्सेस वहाँ पे पाते हैं, मसलन कि 4%, 5% का वोट शेयर, 5 सीटें, 7 सीटें, कुछ भी उन्हें मिल जाती है, तो उसको निश्चित रूप से वो मार्केट करेंगे अपने नेशनल एम्बिशन को पूरा करने के लिए, अलग अलग स्टेट में अपने एक्सपेंशन प्लान में। देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने इस समय पूरा फोकस लगाया है गुजरात पे, हिमाचल को भूल गए हैं, ठीक है। हिमाचल में उनकी हिमाचल में एक्टिव थे, उनकी यूनिट जो लीडर थे बीजेपी ने अपने में मिला लिया। उसके बाद से वहाँ का जो उनका कन्वीनर है, प्रेसिडेंट है, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि अभी केजरीवाल का फोकस जो है गुजरात इलेक्शन पे है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिमाचल में कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके कोई बहुत ज़्यादा फायदा वो रिटर्न नहीं देख रहे हैं। वो उस तरह से उनके नेशनल एम्बिशन में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अब मोदी अमित शाह को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हो, डायरेक्ट काउंटर कर रहे हो, खास करके वैसे स्टेट में जहाँ पे खुद प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर आते हैं, हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। तो मोदी को चैलेंज करना, काउंटर करना आपकी एक स्ट्रैटेजी 2024 के लिए है, और इसलिए वो थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, इस तरह के जो जुमले हैं उसमें फंसेंगे नहीं, कि उनको पता है कि इन सब का जो नैरेटिव है उससे बेहतर है कि अपनी ब्रांड इक्विटी है उसको स्ट्रांग करो, क्योंकि ये जो थर्ड फ्रंट की जो ब्रांड इक्विटी है उसमें ब्रांड इक्विटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, कुछ इक्का दुक्का लीडर को छोड़ दिया जाए जिनके पास अपना कास्ट का वोट बैंक भी है और उनकी पर्सनल आइडेंटिटी भी स्ट्रांग है। तो इसलिए केजरीवाल अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए वो इस फ्रंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। Well, taking on feedback from our viewers, we will keep this discussion short. But one last question for you, Abhishek. Saurabh wants to know, how important is it for political parties to, weave their political campaigns around the aspect of human capital development, especially, free healthcare, education? Do you think it really pays off? Thanks for the question, Saurabh. See, it's undeniably an important issue, because we have a large chunk of population which cannot really afford private healthcare and private education. So this huge chunk of population is entirely dependent on public infrastructure when it comes to healthcare and education. So it remains undeniably an issue. Yes, I mean, there has to be a political discourse around it. Now, whether the Aam Aadmi Party has been able to create some sort of a perception that the political debate should be around this kind of issues, to some extent probably yes. We have even seen before the first round of assembly elections in February-March 2022, a lot of ministers across states were very actively taking up debates against Aam Aadmi Party ministers. They were challenging, okay, you come and see our schools, I'll come and see your school. So a change is definitely visible in that way. Recently we saw delegates from other states come to Delhi and see Delhi schools. So that's a change we can see at this moment. So that's definitely a change of perception is there. The scale of which we need to see more in the coming days. We'll get to see more in the coming days. There are a few months left for the elections. We will be also heading to Gujarat and get you latest ground reports from there. Thank you for watching. We will be back again next week with the new episode.